Good afternoon to all dear students. Let us begin. This is last lecture on Laplace transform. We will discuss applications of Laplace transform. See, if I give you a second order LDE to solve d2y by dt square plus 2 dy by dt plus y equals to 3t e raised to minus t, and you are given initial conditions. The value of the function y to be obtained, its value at t is equals to 0 is given 4, and its rate of change at 0 is given to be 2. So this is differential equation, more precisely LDE of second order with constant coefficients. It is non-homogeneous and these are two initial conditions. So we can assign equation number 1, 2 and 3 to this. And the question is solve. Solve means obtain y in terms of t. T is independent, y is dependent, y depends on t. Both are variables. By solving, we mean obtaining a solution which satisfies this equation and which for t is equals to 0 gives value 4 and for t is equals to 0 gives y dash is equals to 2. आप ये LDE with initial values या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको पहले जनरल सॉल्यूशन निकालकर फिर इनिशियल कंडीशंस इंपोज करनी होती है और वो लेंथी प्रोसीजर हो जाता है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंपैरेटिवली इजी है और जल्दी आंसर दे देता है. ऐसे सॉल्यूशन निकालकर फिर उसमें इनिशियल कंडीशंस इंपोज करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू ढूंढनी नहीं होती है. तो दिस इज इजी टेक्निक टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स. More specifically, LDE with constant coefficients initial value problem. So let us begin. How will we perform? This is differential equation. Let us start with this. So if I write d2y by dt square as y double dash, dy by dt as y dash. So this is the given differential equation and I operate Laplace transform on both sides. Operating Laplace transform on both sides of the given differential equation. You know Laplace transform is distributive over addition or subtraction. So this will be Laplace of y double dash plus 2 times Laplace of y dash plus Laplace of y is equals to Laplace of, so this 3 can be taken common, t e raised to minus t. ये स्टेप सभी को क्लियर है? यहाँ तक आ गया समझ में? जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करना दोनों साइड्स पे. अब ये फॉर्मूलेज रिकॉल करने होंगे. लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश, लैप्लास ऑफ एफ डैश एंड लैप्लास ऑफ एफ तो एफ बार एस से डिनोट होता है. लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ, हाउ मच इट इज? एनीवन? It is s f bar s minus f of 0 and f double dash is s square f bar s minus s into f of 0 minus f dash 0. सेकेंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर तक जाता है फॉर्मूला. ये 1 2 3 ये नोटेशन है और ये दो फॉर्मूलाज है. इनको रिकॉल करके यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. ये f में लिखा है हमने फॉर्मूला और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसमें y डिपेंड्स ऑन t. यहाँ पर f डिपेंड्स ऑन t
In our case y depends on t. तो लैप्लास ऑफ y डबल डैश सिमिलरली क्या आएगा इसी लाइंस पर s स्क्वायर y बार s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0. लैप्लास ऑफ y डैश क्या आएगा s y बार s माइनस y ऑफ 0. एंड लैप्लास ऑफ y का नोटेशन क्या आ जाएगा y बार s. तो यूजिंग दिस इक्वेशन 1, 2 and 3, 1 dash, 2 dash, 3 dash, in equation number 1, or you say in equation A, we get, so I write equation A once again. It is Laplace of y double dash plus 2 Laplace of y dash plus Laplace of y equals to Laplace of 3 times Laplace of t e raised to minus t. And we are given that y at 0 is 4 and y dash at 0 is 2. So we will use this given initial conditions in this equation. And what we get? Laplace of y double dash will be then s square y bar s as it is minus s into y of 0. y of 0 की वैल्यू 4 है माइनस 4s y dash of 0 की वैल्यू 2 है. y double dash का Laplace transform is this much. Make it 1 double dash. Laplace of y dash में भी substitute करते हैं. s y bar s as it is, y of 0 का वैल्यू is 4. So minus 4. Make it 2 double dash. And Laplace of y will just be y bar s. So let it be 3 double dash से. 1 double dash, 2 double dash, 3 double dash यूज करेंगे इस इक्वेशन में जो इक्वेशन ए है. पहली टर्म को रिप्लेस करते हैं इस क्वांटिटी से एस वाई बार एस माइनस 4s माइनस 2 एस वाई बार एस माइनस 4s माइनस 2 प्लस ये होगी एल वाई डबल डैश की वैल्यू प्लस ये 2 एज इट इज लैप्लास ऑफ वाई डैश ये वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर एस वाई बार एस माइनस 4 plus Laplace of y is y bar s is equals to 3 Laplace of e raised to minus t into t. यहां तक सभी को क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Any questions? What about right hand side? इसका लैप्लास कैसे ढूंढेंगे? How to find its Laplace? Laplace of e raised to minus t into t. Yes, anyone? Ma'am, first shifting property. Perfect. First shifting theorem. I will write it later on, but first shifting theorem से वो हो जाएगा. Meanwhile हमने क्या किया? इसे लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को एंड नाउ लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं. इसके साथ y बार s है, इसके साथ y बार s है और इस टर्म में y बार s है. तीनों को कंबाइन कर लेंगे. s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इसका कोएफिशिएंट 1 है. y बार s this is minus 4s, this is minus 2 minus 8 इसको कंबाइन कर लेते.
It is minus 10 is equals to 3. First shifting theorem, let me write it and then we will find the value. First shifting theorem is Laplace of e raised to minus at into f of t is f of t का Laplace निकालना और उसमें s की बजाय s plus a रख देना. तो अगर आप इस फॉर्मूले से इस टर्म को कंपेयर करते हैं तो यू फाइंड a की वैल्यू 1 है और f of t की वैल्यू t है. All of you agree with this? a की वैल्यू 1 और f of t की वैल्यू t. तो बस हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t निकालना है और उसमें t की जगह t plus 1 रखना है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t निकाल करके वहां पर s की जगह पर s plus 1 रखना है. So this is about the right hand side. Left hand side s square plus 2s plus 1 into y bar s minus 4s minus 10 is equal to 3. To find Laplace of t, I am writing the formula. Laplace of t raised to n is equal to n factorial upon s raised to n plus 1. तो using it what it will be? कंपेयर करेंगे तो आपको n1 मिलता है. For n is equal to 1, Laplace of t will be then 1 upon s square. s को रखना है s plus 1. So it is s square plus 2s plus 1 y bar s minus 4s minus 10 is equal to 3 upon s plus 1 whole square. So what we will do, slowly all quantities को right hand side पे लेके जाते हैं. Mathematically adding 4s on both sides and adding 10 on both sides. What do we get? This is how you have to proceed. We are adding 4s and 10 on both sides. अब अंत में क्या करना है, y bar s के साथ ये जो प्रोडक्ट में फंक्शन है s का, उसको उधर शिफ्ट करना है. And what is this? This is expansion of s plus 1 whole square. A square plus 2s into 1 plus 1 सा square. So it is s plus 1 whole square. तो वी आर डन. ये लास्ट स्टेप होती है जिसमें कि y बार s लेफ्ट हैंड साइड पर रह जाता है और बाकी सब टर्म्स हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में. सो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू अराइव एट. y बार s एक साइड पे रह जाए और बाकी सब s के फंक्शंस राइट हैंड साइड पे चले जाए. ये वो पॉइंट है जहां पर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपसे कहा था एक साइड से लैप्लास लगाना होता है, दूसरे साइड से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना होता है. तो y ऑफ t के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उस पे लैप्लास लगाया. अब उसी पे इनवर्स लैप्लास लगाएंगे और y ऑफ t को ढूंढ पाएंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन इन y ऑफ t दिया है, उस पे लैप्लास लगाया, फिर इनवर्स लगाएंगे उस पर और फिर y ऑफ t सॉल्यूशन मिल जाएगा. इनिशियल कंडीशंस हमने ऑलरेडी यूज कर ली है, y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0. अब इस इक्वेशन को मैं कहूंगी इक्वेशन बी. टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बी. वी गेट, अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया हमने, उसके फॉर्मूले यूज किए. अब हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है. इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बार ऑफ s इज इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 अपॉन s प्लस 1 रेज टू 4 प्लस 4s प्लस 10 अपॉन s प्लस 1 रेज टू 2. हाउ डू वी डिनोट इनवर्स लैप्लास ऑफ y बार s? कैसे डिनोट करेंगे? एनीवन? f ऑफ t
इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ बार एस का, नोटेशंस चेंज हुए हैं, तो y बार एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किससे डिनोट होगा? एनीवन? y ऑफ t से डिनोट होगा, y डिपेंड्स ऑन t, इसीलिए अगर d2y बाय dx स्क्वायर होता तो y ऑफ x लिखते हैं आप। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये ऑपरेटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर एडिशन। दो फंक्शंस थे, दोनों का एडिशन था, दोनों को अलग अलग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लिया तो y ऑफ t फंक्शन जो कि सॉल्यूशन है मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3 को कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, और इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s+1/4 प्लस इस फंक्शन के लिए थोड़ी अलग एडजस्टमेंट रहेगी, 4s+4 लिखेंगे, 10 का विभाजन कैसे करेंगे? 4 अधिक 6, दिस विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ 10, 4 + 6। इस स्प्लिटिंग के पीछे भी रीजन है, रीजन क्या है? नीचे s+1 है और ये 4s+4 में से 4 कॉमन ले ले तो s+1 जैसी टर्म आ जाती है। सो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब यहां पर कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एनीवन? एसच्या ऐवजी s+a सारखं दिसतंय, कोणती प्रॉपर्टी लागेल? यस, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां पर लिखती हूं मैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट इनवर्स लैप्लास ऑफ f बार ऑफ s+a इज e⁻⁸ into f of t। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस थ्योरम को यूज करते हुए, a की वैल्यू 1 है, e⁻⁻t इनवर्स लैप्लास, f of t मतलब इनवर्स लैप्लास, s की जगह पर s+1 की जगह पर s रखेंगे। दिस इज वेरी क्रुशियल स्टेप, ये समझ में आना जरूरी है। आ रहा है आपकी समझ में? ये s+1 की रिप्लेसमेंट e⁻⁻t इंटू इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s⁴ से हो गई। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाया हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, प्लस इनवर्स लैप्लास 4s+1/s+1² प्लस 6/s+1², ये स्प्लिट कर दिया एडिशन, इज इक्वल्स टू 3e⁻⁻t इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s⁴ कितना आएगा? आई राइट डाउन द नेसेसरी फॉर्मूला, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s⁴n is t⁻n−1 upon n-1 factorial, is it? When n is a positive integer। तो ये सब फॉर्मूलेज रिकॉल करने होते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से n की वैल्यू 4 है, तो t³ upon 3 factorial is 6। t³ upon 6 इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s⁴ is t³ upon 6। So every now and then you have to use formulas, तो फॉर्मूलेज अच्छी से लर्न होना बहुत जरूरी है, तभी कुछ कर पाते हैं। +4
4 कॉमन लिया, इनवर्स लैप्लास ऑफ s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 कॉमन लेकर इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व हो रहा है. 3 1s 3 2s 4 इनवर्स लैप्लास, एक s प्लस 1 कैंसिल होगा, एक बचेगा, प्लस 6 s प्लस a जैसा दिख रहा है तो एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फिर से लगा दिए. इज इक्वल टू e रेज टू माइनस t क्यूब अपॉन 2 प्लस 4 s प्लस a e raised to minus t. Remember this, inverse Laplace of 1 upon s plus a is e raised to minus at. a की वैल्यू 1 है. So we have used this formula. Next, plus 6 e raised to minus t. Inverse Laplace of 1 upon s square is t upon 1 factorial. 1 factorial is 1. So this is the answer. E raised to minus t is common. T cube upon 2 plus 4 plus 6t. So this is the solution. E raised to minus t into bracket t cube upon 2 plus 6t plus 4. This is the solution y of t. जो दिए हुए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या किया है उसका. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है. LDE नॉन होमोजीनियस LDE विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर. ये इनिशियल कंडीशन है. 0 के लिए y 4 है और y का डेरिवेटिव 0 के लिए 2 है. ये गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको यूटिलाइज करना है और y ऑफ t सॉल्यूशन ढूंढना है जो इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी सेटिस्फाई करेगा और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. ऑब्जेक्टिव y ऑफ t ढूंढना है. नो डाउट आप LDE से भी सॉल्व कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व होता है. सॉल्व करने के लिए हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज यूज किए. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फॉर्मूलेज. ये फॉर्मूला यूज किया है हमने. लैप्लास ऑफ y डबल डैश, लैप्लास ऑफ y डैश एंड लैप्लास ऑफ y को y बार से डिनोट किया है. नोटेशन में चेंज है और इनिशियल कंडीशंस भी यूज कर ली. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स की इनिशियल कंडीशंस दी है. लाइक टर्म्स को कंबाइन किया और ऐसी अरेंजमेंट की कि लेफ्ट हैंड साइड पे y बार s रहे और बाकी सब s के फंक्शंस राइट हैंड साइड पे चले जाएं. जैसे ही y बार s का एक्सप्रेशन मिला वैसे ही हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया. इससे पहले नहीं ले सकते, ये स्टेप अचीव होने के पश्चात ही वो हो सकता है. इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड्स पे ऑपरेट किया और फाइनली y ऑफ t मिल जाता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज को यूज करके. ये वो फंक्शन है जो दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जिसके लिए इनिशियल कंडीशंस भी होल्ड होगी. दिस इज अनदर टेक्निक टू ऑब्टेन solution of LDE with constant coefficients with certain initial conditions that are given method. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. Any questions? Shall I proceed further?
Find inverse Laplace transform. The question is, find inverse Laplace transform of 1 upon s plus 1 into s square plus 1. इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है. कैसे कर सकते हैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? कोई बता सकते हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन 1 upon s plus 1 into s square plus 1. Let me give you a hint. अब कोई बता सकता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है? ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए. f1 बार s कितना आएगा? कोई एक फंक्शन को आपको f1 बार का कहना है, दूसरे फंक्शन को f2 बार कहना है. I hope this is clear. Convolution theorem of inverse Laplace transform states that inverse Laplace of f1 bar of s into f2 bar of s is integration from 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du. This is convolution theorem of inverse Laplace transform. So we will use this. यूज कैसे करेंगे? पहले फंक्शन है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेंगे, दूसरा फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेंगे. एक में t की जगह पर u रखेंगे, दूसरे में t की जगह पर t माइनस u रख देंगे. दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट लेकर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, तो वो रहेगा इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. So let us perform it. पहले फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं. How much is the inverse Laplace transform of 1 upon s plus 1? E raised to minus t. How much is the inverse Laplace transform of 1 upon s square plus 1? Sin t. This is f1 of t. This is f2 of t. एक को u में लिखना है, एक को t माइनस u में लिखना है. e रेस टू माइनस t को हम t माइनस u में लिखेंगे और sin t को हम u में लिखेंगे बिकॉज वो इजी रहेगा. sin t माइनस u से डील करना डिफिकल्ट है, e रेस टू माइनस t माइनस u को डिफिकल्ट करने से. तर पहिला फंक्शन आपण t माइनस u मध्ये लिहिणार, t च्या ऐवजी t माइनस u ठेवून, and that is e raised to minus t plus u. Minus and minus into minus becomes plus e raised to minus t into e raised to u. जब आप इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, t is treated as constant. ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, उसको आप साइड में रख सकते हैं. तो हमने डिसाइड कर लिया है f1 हम t माइनस u के लिए ले रहे हैं. लेट मी पुट दिस इन अ ब्रैकेट. f2 u में लिखते हैं, sin t है f2, sin u हो जाए. सो वी आर रेडी टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन. Thus inverse Laplace of 1 upon s plus 1 into s square plus 1 is equals to integration from 0 to t f1 of t minus u f2 of u du. e रेस टू माइनस t को कॉमन ले लेते क्योंकि जब आप u विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट कर रहे हो तो इट इज अ कांस्टेंट. अब इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है.
लाइट रूल से एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक u हो जाएगा, u और ये v, uv हम इस फॉर्मूले के बता रहे हैं, इस u का और इस u का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूले में u v1 माइनस u डैश v2 माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस प्लस u डबल डैश v3 minus and so on. This is the formula. Let us use it to obtain integrals value. E raised to minus t u v1 u v1 e raised to u का इंटीग्रेशन मतलब v1, e raised to u का इंटीग्रेशन is e raised to u, u v1 माइनस u डैश साइन u का डेरिवेटिव cos u, साइन u का डेरिवेटिव cos u होता है, रिमेंबर, u v1 माइनस u डैश v2, e raised to u का इंटीग्रेशन अगेन e raised to u प्लस u डबल डैश v3 साइन u का डबल डेरिवेटिव मतलब cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u और v3 e raised to u का इंटीग्रेशन e raised to u। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये फॉर्मूला अगर e raised to u इंटू साइन u को लगाते हैं तो ये तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, नॉन स्टॉप, साइन का कॉस, कॉस का साइन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि e raised to u sin u का इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला से होगा एंड दैट फॉर्मूला इज e raised to at into sin bt। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वक्त भी हमने लिया था ये। व्हाट इज द वैल्यू? e raised to at into sin bt का पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड इज e raised to at upon root a square plus b square into sin are you able to recall that? E raised to at upon square root of a square plus b square. I rewrite the formula. So this formulas you have to remember. E raised to at into sin bt is e raised to at upon a square plus b square। a यहाँ से लेना है, b यहाँ से लेना है, into a sin bt minus b cos bt। Note down this formula. So we scrap this idea. We don't use this formula. We will not use this formula. Instead, we will use the one which I cited right now. वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है जब एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो इन्फिनाइट सीरीज आ रही है, वो रुकता नहीं है, फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला यूज करना है। सो इफ यू कंपेयर, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, सो दिस इज e raised to minus t। हाँ बोलिए मैम, तो रिकॉल करना बहुत हेवी हो रहा है। यस मैम थोड़ा रिकॉल करो बोला है ऊपर वाला। यस यस आई विल करते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, एकदा मला हे कंप्लीट करू द्या, पुन्हा घेते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटू e raised to at, e raised to at, it is e raised to au, e raised to at will be e raised to u, a sin bt, a की वैल्यू 1 है,
1 sin u माइनस b भी 1 है, माइनस 1 cos u, and the limits are 0 to t. Now let us evaluate this integral by substituting the limits. e raised to minus t बाहर था as it is. अपर लिमिट t रखते हैं u की जगह पर. 1 square plus 1 square is 2 sin t minus cos t. This is upper limit. Minus lower limit. u को 0 रखना. e raised to 0 will become 1. 1 upon 2. Sin 0 is 0. Cos 0 is 1. This is lower limit. Upper limit minus lower limit. So what is the value? E raised to minus t, e raised to t upon 2 sin t minus cos t as it is, minus 0 minus 1 is minus 1, minus 1 into 1 upon 2 is minus 1 upon 2, so it is plus 1 upon 2. So this is the value of inverse Laplace of 1 upon s plus 1 into s square plus 1. If you have any questions, you can ask. इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे हम? e raised to minus t से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इसे दिया है. e raised to t into e raised to minus t is e raised to t minus t is e raised to 0 is 1. ये हो गया sin t upon minus cos t upon 2 plus e raised to minus t upon 2. e raised to minus t इस टर्म को भी दे दिया. तो फाइनली sin t minus cos t plus e raised to minus t. This is inverse Laplace transform of 1 upon s plus 1 into s square plus 1 by convolution property of inverse Laplace transform. एक क्विक रिकैप ले लेते हैं अभी तक जो भी हमने इस एग्जाम्पल में किया है. इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है. एक फंक्शन 1 अपॉन एस प्लस 1 है, दूसरा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं. तो f1 बार एस इंटू f2 बार एस ऐसा दिखता है. तो वो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की. फॉर्मूला कहता है कि इनवर्स लैप्लास ऑफ f1 बार इंटू f2 बार इज इंटीग्रेशन f1 u इंटू f2 t माइनस u du. तो f1 लिखा, f1 बार लिखा, f2 बार लिखा, इनके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लिए. एक्सपोनेंशियल हमेशा t माइनस u में लिखना चाहिए अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा तो दूसरा u में लिख दिया sin t. एक t माइनस u में लिखा, एक u में लिखा और अब इंटीग्रेशन परफॉर्म किया. इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, 0 से t लिमिट्स है, ये टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते वक्त हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to at into sin bt is e raised to at upon a square plus b square a sin bt minus b cos bt. ही जी टर्म असते ना ती इथून घ्यायची आणि ही इथे ठेवायची आणि साइनच्या ऐवजी कॉस घेऊन इथे ठेवायचं, इथे a आणि इथे b. ये फॉर्मूला यूज किया, लिमिट्स दी और फाइनली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ढूंढ लिया. अभी क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस?
Shall I proceed further? Any questions? Yes? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. अब एक क्वेश्चन लेते हैं. वेरीफाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. Verify convolution theorem for the pair of functions f1 of t equal to a and f2 of t equal to sin t. t में फंक्शंस दिए हैं और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो डेफिनेटली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को वेरीफाई करना होगा. पॉइंट नंबर 1. तो सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं. व्हाट इट स्टेट्स? लैप्लास ऑफ integration from 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du is f1 bar s into f2 bar s. अभी इससे पहले हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए किया यूज. अब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करना चाहते हैं. f1 of t is equal to a, ये कांस्टेंट फंक्शन है और sin t वेरिएबल फंक्शन है. इस फंक्शन के लिए इस थ्योरम को वेरीफाई करना है. मतलब इसका लैप्लास निकालना है, इसका लैप्लास निकालना है और दोनों का प्रोडक्ट लेना. ये राइट हैंड साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आसान वाला फंक्शन t माइनस u में लिखना, डिफिकल्ट वाला फंक्शन u में लिखकर इंटीग्रेशन करना और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना. ये दोनों वैल्यूज मैच करनी चाहिए. जब ये दोनों वैल्यूज मैच होगी तब वेरीफाइड बोल के हो जाए. टास्क समझ में आ रहा है आपके? तो f1 ऑफ t a है, a कांस्टेंट है, तो लैप्लास ऑफ f1 ऑफ t इज लैप्लास ऑफ a इज a का लैप्लास रहेगा a अपॉन s, क्योंकि वी नो लैप्लास ऑफ अ कांस्टेंट k इज k अपॉन s. उसी लाइंस पर a का a अपॉन s. नोट दिस इज f1 बार ऑफ s. f2 ऑफ t है sin t. sin t का लैप्लास 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका f2 बार ऑफ s. तो राइट हैंड साइड जिस थियरम को प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड f1 बार ऑफ s इंटू f2 बार ऑफ s कितना होगा? a अपॉन s इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस. अब यही लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड को परफॉर्म कर लेते हैं. f1 ऑफ कोई इसमें और इसमें कौन सा डिफिकल्ट है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक sin t फंक्शन है. कौन सा डिफिकल्ट है? यस, a डिफिकल्ट है या sin t डिफिकल्ट है? sin t. तो sin t को लिखेंगे हम u में. sin t को लिखेंगे हम u में, sin u. और a एक कांस्टेंट फंक्शन है, चाहे t हो चाहे t माइनस u हो, उसकी वैल्यू a इटसेल्फ है. तो बेसिकली हम इसके प्रिपरेशंस कर रहे हैं. f1 ऑफ u के जगह f2 ऑफ u जाएगा एंड f2 ऑफ t माइनस u की जगह f1 ऑफ t माइनस u जाएगा.
Therefore, Laplace of integration from 0 to t f1 of t minus u into f2 of u du. This is allowed. दोनों के लिए थ्योरम होल्ड होता है. Is equal to. बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म कर रहे हैं अभी. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू Laplace of integration from 0 to t. f1 is a, f2 is sin u du. This is equal to Laplace of a is a constant, sin u du. लैप्लास ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी. ये कल किया था हमने, इफ यू रिमेम्बर. इंटीग्रेशन हैज समथिंग टू डू विद डिवीजन. तो साइन टी या साइन यू का लैप्लास निकालकर उसको एस से डिवाइड कर देना. साइन टी का लैप्लास है 1/s² + 1. So the final answer is a/s into s² + 1. This is left hand side. a/s into s² + 1 right hand side. Left hand side be a/s into s² + 1. Thus, for f1 of t equal to a and for f2 of t equal to sin t, convolution theorem holds true. What is that theorem? Laplace of 0 to t f1 of u f2 of t minus u du. ह्याचा लॅप्लास इक्वल असतं. ह्याचं लॅप्लास काढायचं, ह्याचं लॅप्लास काढायचं आणि त्यांच्या प्रोडक्टला. तो कितना आसान है ना. मतलब कभी आपको ऐसा पूछा जाए कि ऐसे फंक्शन का लैप्लास ढूंढो, तो आपको केवल इसका लैप्लास निकालना है. इसमें t माइनस यू के बजाय t रखकर उसका लैप्लास निकालना है और दोनों का प्रोडक्ट लेना है. So this is how we have verified convolution theorem for Laplace transform. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए. अब थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सिर्फ ऐसे डिस्कशन करती हूँ मैं, आपको पता रहना चाहिए. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का लैप्लास अगर पूछते हैं तो इसे कैसे करना है. सिर्फ डिस्कशन कर रही हूं मैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे. यू शुड हैव द आइडिया कि ऐसे केसेस में कैसे प्रोसीड करना है. लेफ्ट टू राइट, पीछे से आगे की ओर आना होता है. साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसका लैप्लास ढूंढना होगा. हमें लैप्लास साइन 80 पता होता है, बट साइन 80 प्लस बी का नहीं पता होता है. साइन 80 का पता होता है लेकिन 80 प्लस बी का लैप्लास पता नहीं होता है हमें. तो सबसे पहले यहां पर हमारा जॉब रहेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये कोएफिशिएंट है इस फंक्शन का और ये कोएफिशिएंट है इस फंक्शन का. तो इसका लैप्लास कैसे ढूंढेंगे हम? कॉस अल्फा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लैप्लास ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन अल्फा इनटू लैप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी. लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है.
ऐसे आप साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ पाते हैं। सबसे पहले आपने यूज किया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर ये कॉन्स्टेंट्स है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज पॉइंट नंबर 1। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को एक्सपांड किया। पॉइंट नंबर 2, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज की। स्टेप नंबर 3, this is linearity property. Step number 3 is Laplace transform of integral का फॉर्मूला यूज किया। Laplace transform of integral is f bar s upon s। तो इसका लैप्लास ढूंढना और उसको s से डिवाइड कर देना, तो फाइनली इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। ये एक एग्जांपल था। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछते हैं, तो कैसे परफॉर्म करेंगे? फिर से पीछे से आगे की ओर आना है। साइन 2t प्लस 3 को साइन a प्लस बी से एक्सपांड कर देना है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेना है। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज करके इस इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लेना है। और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन ऑफ t है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा करके फाइनली इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। दिस इज अनदर थिंग। और ऐसा एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले? तो सबसे पहले साइन 3t का निकालोगे, फिर एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में इसलिए फर्स्ट शिफ्टिंग से इन दोनों का निकाल लोगे प्रोडक्ट का, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय t से इन तीनों के प्रोडक्ट का निकल जाएगा लैप्लास, और फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लगाकर फाइनली इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे इसका निकालना लैप्लास, फिर प्रोडक्ट का फर्स्ट शिफ्टिंग से, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय t की प्रॉपर्टी से, फिर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो इट इज लाइक डब्बे में डब्बा में डब्बा में डब्बा, लाइक दैट। सो दीज आर सम आइडियाज जो मुझे आपको देना था। और अब आते हैं और सिंपल एग्जांपल्स की ओर। सपोज a cos स्क्वायर bt का पूछ रहे हैं, लैप्लास ऑफ a cos स्क्वायर bt। cos bt का आप निकाल सकते हो, लेकिन cos स्क्वायर bt के लिए फॉर्मूला नहीं है। cos स्क्वायर bt मतलब cos bt इंटू cos bt। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जैसे एलडी में किया था ना, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे से हम इसका पावर कम कर देंगे, स्क्वायर का रेस टू 1 में कन्वर्ट कर दिया और a से मल्टीप्लाई करेंगे और अब लैप्लास निकालना आसान हो जाएगा। a अपॉन 2 कांस्टेंट है, कॉमन लेते हैं, लैप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2 bt। लैप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन s, cos 2 bt का cos 2 bt, so this is cos 80 sort of, a की वैल्यू 2b है, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर।
a upon 2 1 upon s plus s upon s square plus 4v square. So this is Laplace transform of higher orders of sine and cosine. cos का निकाला, अब sin का निकालते हैं. हायर ऑर्डर्स का पावर कम कर देना, हायर पार्ट्स का पावर कम कर देना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करके. साइन क्यूब टी का लैप्लास कैसे निकालेंगे? तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. तो साइन क्यूब थीटा, I will write that formula. Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. तो इस फॉर्मूला से sin cube theta will be sin 3 theta, ये लेफ्ट में लेके जाएंगे, माइनस 3 sin theta, और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्यूब को 3 थीटा और थीटा एंगल में कन्वर्ट करेंगे. sin 3t minus 3 sin t upon 4 and operating Laplace transform on both sides. sin cube t का Laplace दे देगा. sin 3t minus 3 sin t upon 4 is equal to 1 upon 4 Laplace of sin 3t minus 3 times Laplace of sin t is equal to 1 upon 4. sin 3t का लैप्लास होगा a upon s square plus a square के चलते 3 upon s square plus 9. sin t का रहेगा 1 upon s square plus 1. 3 कॉमन लेते हैं, 1 upon s square plus 9 minus 1 upon s square plus 1. 3 upon 4 cross multiplication, s square plus 1 minus s square minus 9 upon s square plus 9 into s square plus 1. s square minus s square, 1 minus 9 is minus 8. Minus 8 into 3 is 24. 24 upon 4. 4 6 are 24. So this is minus 6 upon s square plus 9 into s square plus 1. So this is the Laplace transform of sin cube t. So just verify this formula. Sin cube t is, I beg your pardon here, it is sin cube t is 3 sin theta. Note this, it is 3 sin theta minus sin cube 3 theta. ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, plus minus. So here is a minus and here is a plus. So this is s square plus 9 and 9 minus 1 is 8. So this is plus 8. You please make this change. तो sin cube theta, cos cube t, ऐसे फंक्शंस के लिए भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करके निकाल सकते हैं. एंड दिस कंप्लीट्स द चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्म. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस?